हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज क्या कर रहे हो जी प्रैक्टिकल में? गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। तो आज क्या है जी? कोई डाउट है प्रीवियस सेशन में? इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस वेरियस एल्गोरिथम्स. Sir, we cannot hear you. Sir, your voice is not coming to us. Yeah, I said I think in the previous session we have already discussed about various algorithms. So I hope you are through with those algorithms. Is there any doubt to anyone in any previous algorithm? Because today then we are supposed to start with the another algorithms. Sir, logistic algorithm, can you teach us? Sure, I'll start with logistic then. Sir, does it use log in it? That's why it is called logistic. See, whenever we talk about logistic, that means it's not log. Log is a one part. It's in the formula part. So basically, we are working on classifications. So how to classify the patterned data, right? So let us try to create some logistic part, logistic issues, and just give me a minute. Let me open for you, and then I'll start. I'll share the screen first of all. Yeah, just take a look. I hope my screen is visible to all. Mm, sure. Here we have the logistic. Now just take a look. What is the purpose of logistic regression? See, logistic means whenever we want to classify the data. First, your data is always in the form of uh, what type of data is there. First, you need to identify your data, right? So, is it structured or unstructured? It has to be a structured one, first of all. So, once it is structured, then we'll talk about the various different types of regression model. And that algorithm is mathematically, if we'll say, we'll generally use to write y is equals to 1 upon 1 plus e raised to power minus x is basically the formula for
logistic regression. I don't know whether it is written here as well or not, but just try and understand how it works. So this is one of the model used for uh, see, there we have the content, but they don't have mathematical representation, I believe. Fine, no issues. So just try and understand what is this all about first of all, and then I'll explain what exactly they are saying. See, as we are onto the logistical part, logistic means we are talking about the data where we have a data, and now we are supposed to talk about in the concepts of classifications. Sometimes we cannot go directly with the regular regression model like multi-level regression, and again, so now we have another level of categories. So let us try to categorize the data, right? So what is the process of categorization of the data? So that categorization is like especially where we use it in the like fraud detection techniques, we use in the disease diagnostic techniques, we use in the emergency detection issues. So there are certain criterias of the application using logistic regression. Okay, so what is this all about? So logistic regression aim to solve the classification problems. It does this by predicting the categorical outcomes, not in the particular value. It's a categorical. So we have to generate the category like zeros and ones. Okay, certain categories. We have to create certain level of categories, and on that basis, which value belongs to whom. जैसे हम कहते हैं ना, let's say will you have two values, let's say gender, so male female. So male and female we already divided into the category, and let's suppose you go for the mean value or the average value of any particular scenario based on certain category. So logistic regressions are generally for categorical data. First of all, the most important part. Okay, it is basically like we are trying to convert the independent variable into the expression of the probability. यहाँ पर हम लोग ये कह लो कि we are not going to predict any value, but तो prediction नहीं कर रहे हैं हम. We are not going to find the accuracy and the level of predictions directly. इसमें हम जो यूज करते हैं, हम कर रहे हैं probability. तो शायद ये इसमें होगा probability, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स. सो मोस्टली जो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पार्ट यूज करते हैं, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर like not a direct prediction part, but it is a concept called probability part. ठीक है, so we have to identify the range of the probability which may lie between zeros and ones. ठीक है, so with respect to their dependent variables. अभी आपका जो मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, है ना, the expression of the independent variables need to be connected with the probability. उसको हम probability के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, to with respect to their dependent variables. So accordingly we'll try to convert the prediction to the concepts of probability. So we are not going to talk directly as in the terms of probability, your predictions, but we'll try to convert that predictions into the concepts of probability. Right, so there is a difference. Okay, we are working on the classification, we are talking about categorical data, and further we are talking about the predictions to be converted in the form of probability. So we are more focusing on probability, ना कि इसकी probability क्या होगी. जैसे वो होता है ना, डायस आप करते थे मैथ्स में, शुरू में आपको याद होगा कभी स्कूलिंग में मैथ्स में, अगर probability चैप्टर भी था 11th 12th में, शायद आपने कभी पढ़ा होगा. So there is a chapter called probability, right? उसमें क्या होता था, डाइस है, यू हैव अ डाइस. तो डाइस में 6 कब आएगा, जब आप लूडो खेलते हैं एंड ऑल. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/6, है ना. व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? तो 6 में से एक बार शायद आपका 6 आ सकता है. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, है ना. दैट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेवल, राइट. बट आपने 20 बार थ्रो कर दिया तब भी 6 नहीं आया. सो
व्हाट इज द प्रिडिक्शन? आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो कि आपका 6 आएगा ही आएगा, अब नहीं आएगा तो अब आएगा, 6 बार में तो एक बार आना ही चाहिए। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 1/6, है ना? तो जब आप 6 चाहिए आपको, जब आप डाइस थ्रो करते हो, है ना, 1 2 3 4 5 6 उसमें पॉइंट्स वो मार्क्ड होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि मेरी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, लेकिन आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इवन इन द 6 टाइम्स और 10 टाइम्स आई विल गोइंग टू गेट 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं, इसको बजाय हम प्रेडिक्शन में बात करें, we are supposed to talk in the terms of probability. Is that clear? Yes, sir. Perfect. So इसके लिए हम क्लासेस बना देते हैं, एक इसका कट ऑफ रख लेंगे। भाई देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। स्क्रीन मैंने शेयर करी तो हुई है, इसमें इन्होंने डायग्राम कुछ बनाया है क्या? सीधा कोड दिया है। ओके, इसको ना पता है कैसे हम लोग दिखाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। लेट मी गिव मी अ मिनट। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है लाइक ओपन बोर्ड। Let me try to open a board for you to make it more clear. But okay, मेरा बोर्ड नजर आ रहा है अभी नहीं। एक मिनट, yes, now must be there. It's like that, right? तो अब आप देखिए इसका ना डायग्राम किस तरह से, एक तो इसके अंदर जो हम डिफाइन करते हैं वो कुछ इस टाइप से होता है। पेंसिल, तो भाई प्लीज ये मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1/1 प्लस e का पावर -x। This is logistic regression. This is the mathematical formula for logistic regression, right? अगर आप इसे really deep में पढ़ना चाह रहे हैं तो, so basically it's nothing like it's a concept called sigmoid function where we try to identify for spam detection whether it is spam or not spam. Like in case of your email आती है तो आपका कभी वो स्पैम में जाता है या नहीं जाता है, तो उसके लिए कोई कंडीशन होगा ना, उसके अंदर कोई पैटर्न होगा। तो जो भी मेल के अंदर अगर हमें वो पैटर्न मैच होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम मेल्स को क्या करते हैं, उसको कहते हैं ना भाई ये तो ये स्पैम मेल है, या इनबॉक्स में जाएगी या स्पैम में जाएगी। सो व्हाट इज दैट मेथड बिहाइंड दैट? दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पार्ट, दैट डेटा, जिसके अंदर हम लोग लेते हैं ई, इसमें y हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी प्रोबेबिलिटीज हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, where the value of y is again 1/1 plus e of -x. Now what is e? सर y इसमें हमेशा 1 से छोटे ही रहेगा ना, 1 से कम रहेगा? नहीं, y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 and 1 के बीच। हाँ, 0 और 1 के बीच में रहेगी, इस तरह से हम बोल के चलते हैं। जो है ना, भी मोर देन 1। करेक्ट। सो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन जीरोस एंड वंस के बीच में हम लोग रखते हैं। इसीलिए मैं इसका एक डायग्राम और बना देता हूँ, आपको शायद और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिजाइन समथिंग रफली फॉर यू। इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में जब आप बनाओगे, इस तरह से आप ग्राफ बनाते हो ना जब, राइट, तो दिस इज योर, there you will have a y direction, there you will have a x direction, ठीक है। और इसमें हम ये लेके चलते हैं, लेट्स से यहाँ जरूरी नहीं है जीरो जो है बिल्कुल पॉइंट पे ही हो। लेट्स से दिस इज द पॉइंट वेयर इट एग्जिस्ट फॉर जीरो, एंड लेट अस से दिस इज द पॉइंट विच एग्जिस्ट फॉर 1, ठीक है, दिस इज 1, ओके। अब इसके बीच में हमें चाहिए एक लाइन, तो मैं ये एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ आपके लिए। ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, बट सॉरी आई कैन नॉट डिजाइन बेटर ऑन बाय यूजिंग माउस। सो जस्ट कंसिडर देयर इज अ लाइन विच इज द पार्टीशन ऑफ इट। तो पार्टीशन को हम क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, इसको मैं ये मान के चलो हूँ, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 0.5, ठीक है। सो दिस इज 0.5, यानी
कोई भी वैल्यू जो 0.5 से अबव होगी वो टुवर्ड्स 1 मान लेंगे, और जो कोई भी वैल्यू जो 0.5 से नीचे होगी वो टुवर्ड्स 0 मान लेंगे। सो बेसिकली हमारे दो क्लासेस बन जाएंगे, और वो क्लासेस इस तरीके से निकलेंगे कि ये देखो यहां से निकलेंगे हमारे ये क्लासेस। लेट्स से मैंने एक कैटेगरिकल डेटा बनाया, और वो कैटेगरिकल डेटा मेरा इस तरीके से होता हुआ कुछ ऐसा गया, जिसमें यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के डेटा सेट्स आ जाएंगे। जो भी एक्स और वाई के डेटा सेट विच आर नियर बाय 1, तो वो इधर आ जाएंगे, और जो विच आर नियर बाय 0, थोड़ा सा 0 और 0 से हल्का सा ऊपर होंगे, सो दैट कम्स ओवर देयर। तो ये जो डेटा आएगा इस तरह से क्लासिफाई हो जाएगा। सो इन अदर वे वी यूज टू कॉल इट दिस इज माय क्लास। इसको ऊपर से बोलते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, क्लास ए कहेंगे हम इसको। दिस इज क्लास ए, this is class A, okay, this is class A, and this is class, I cannot draw easily by using mouse, but I think you can understand, this is class B, right? So this is class B, ओके। आई थिंक अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स होंगे 10, 20, 30, 40 व्हाटएवर। तो ये मेरे एक्स कोऑर्डिनेट के कुछ पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे, लाइक दिस इज सपोज 10, है ना, देयर यू हैव 10, Why it's called a sigmoid function? It looks like राइट, S. it's a sigmoid function, that is what I said earlier also, that's a It sigmoid looks function. it looks like S, no? Sir? Correct, this is a sigmoid function, this is 30, this is 40 and all. So you can define things like this. So this is a sigmoid function, okay, this is your values, कुछ ऐसा बनता है लगभग। Alright, so values always lies between zeros and ones, and we are trying to categorize. So basically it's not categorical data. So what we are trying to do, we are trying to classify the data in these two different formats. ठीक है, क्लास ए और क्लास बी में डिवाइड कर दिया। अब क्लास ए क्या है, ये नॉट स्पैम है, क्लास बी क्या है, ये स्पैम है, इन केस ऑफ ईमेल्स, इन केस ऑफ वेरियस अदर एक्टिविटीज। ई क्या होता है, ई को हम कहते हैं इल्यूर, EULER, यूलर कांस्टेंट वैल्यू है ये मैथमेटिक्स में यूलर कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसका नंबर होता है 2.7182 ई, वेयर ई स्टैंड्स फॉर, ये E जो है, E स्टैंड्स फॉर, सर इसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं सर। यूलर है ये, यूलर का ना एक कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जैक्टली, एक्सपोनेंशियल होता तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो वो -x है ना, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसकी, है ना। तो दिस इज यूलर कांस्टेंट, जिसमें हम इसको लेके चलते हैं 2.7182, दिस इज यूलर वैल्यू 82, दिस इज यूलर वैल्यू E, जिससे आप y निकाल दो, और x तो आपका कोऑर्डिनेट नीचे से आ ही रहा है, ये x कोऑर्डिनेट आपके जो भी पॉइंट्स आएंगे। सो दिस इज द वे हाउ वी जनरल यूज टू वर्क, एंड देयर यू हैव अ डेटा ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम पाइथन में इसको चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया। हालांकि अगर इतना अच्छा अगर एग्जाम में सच में लिख के आओगे तो रियली यू विल गेट अ फुल मार्क्स, बट जनरली हम इग्नू में इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है, क्योंकि बट एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन आप सही से दें तो व्हाई नॉट। और साथ के साथ पाइथन कोड लिख देंगे थ्योरी में तो वुड बी रियली ग्रेट फॉर यू ऑल अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। अगर आप 2 to 9 का पेपर दे रहे हैं तो आर लैंग्वेज का सिंटेक्स लिखिएगा, और 2 to 8 का पेपर दे रहे हैं तो पाइथन का इसका कंटेंट लिखिएगा, राइट। सिंटेक्स आपका वैसा होना चाहिए, बट एक्सप्लेनेशन आपको पता चल गया। और मेन ना पॉइंट्स हमें चाहिए, दैट इट सॉल्व्स द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, प्रेडिक्टिंग कैटेगरिकल आउटकम, है ना, कन्वर्जन ऑफ, कहीं ऐसा कहीं लिखा है क्या, प्रेडिक्टिंग इफ द ट्यूमर, ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑफ विच is predicting if the tumor is a malignant or benign,
So other cases have more than two outcomes to classify. In this case, we call the multinomial model. So a common example for multinomial logistic regression would be predicting the class of an iris flower between three different species. तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगरिकल मॉडल में लेके जा रहे हैं. So it's a binomial model, predict a binomial, right? Not a multinomial. So it's better we should take a binomial. So here we are using the logistic regression to predict the binomial variables, and that means it has also only the two possible outcomes. इसके दो ही outcomes निकलेंगे. इसके लिए आपको numpy import करना है. numpy में अपना data for x डालना है and just try to reshape. उसके बाद आपको एक array बनाना है for y where the values lies somewhere 0 to 1. तो x and y का coordination ले लेंगे. sklearn आप यूज करते हैं जिसमें लीनियर मॉडल यूज करेंगे. लीनियर लॉजिस्टिक रेग्रेशन, ठीक है. लीनियर मॉडल में यू हैव टू यूज अ मेथड कॉल्ड लॉजिस्टिक रेग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट में ये सारे डेटा को फिट करेंगे. तो ये हमारे मॉडल्स बनते हैं. दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स. So we have to create the method, we have to create this model. So linear model dot logistic regression is the method to declare a model in a form of object called logr. And in this model we are trying to fit the value of x and y. तो हमारा जो x और y का वैल्यू ऊपर से आया था, ठीक है, ये क्या है, x stands for the representation of tumor in centimeter, ठीक है, and y whether or not the tumor is cancerous or not. तो 0 means no and 1 means yes. तो 1 मतलब ये से कैंसर है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है और 0 means no. तो डॉक्टर्स ने अलग अलग प्रेडिक्ट किया. किसी का जब ट्यूमर साइज इतना निकला तो डॉक्टर ने कहा नहीं, दिस इज नॉट कैंसरस. बट अगर कहीं कोई और वैल्यू निकली समथिंग लाइक दैट, और तो डॉक्टर ने कह दिया कहीं 1 है. सो वेरियस डिफरेंट द कंटेंट. So let us assume we have this various one of the disease detection technique. ये मैंने अभी आपको बताया भी ना, disease diagnose के लिए भी हम यूज करते हैं, fraud detection में करते हैं, emergency detection में, spam detection में, इस तरह की applications हम logistic regression में यूज करते हैं. So let us try and let's say we'll figure out that we have. इसमें error consider होता है सर? हाँ जी, इसमें error भी consider होता है सर? मतलब कुछ अगर एरर जो है ऐसा है ना, क्योंकि जब आप वैल्यूज डालोगे इसलिए हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लिया है, कट ऑफ ले लिया है जिसे हम कहते हैं, ठीक है. देखो ये कट ऑफ है 0.5. सो 0.5 में एरर अगर आएगा तो वो वैल्यूज होंगी जिसकी वैल्यू का रिजल्ट ही 0.5 आ रहा होगा. तो अब 0.5 को क्या लोगे, क्लास ए में लोगे, क्लास बी में लोगे. सो दैट काइंड ऑफ पार्ट इज कंसिडर्ड समटाइम्स एज एन एरर. अदरवाइज ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ लाइन है ना 0.5. अगर 0.52 है तो और एलैबोरेट करते हैं, इसीलिए यूलर कांस्टेंट लेके हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसमें भी एरर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएगा, डिपेंडिंग अपॉन डेटा. ठीक है, अगर किसी का डेटा 0.5 है तो आप इसे पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, फिर कंफ्यूज हो गए ना, फिर एरर आ गया. अगर ये 0.6 है क्लियर है, 0.4 है क्लियर है, बट 0.5 है तब क्या है. So how you will consider it? तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स ये कहते हैं भैया ये तो मार्जिनल लाइन है. मार्जिनल लाइन मतलब आप ऑलरेडी इसमें हो, क्लास ए में एंटर कर रहे हो. आजकल ये डॉक्टर्स बोलते हैं ना, आप प्री डायबिटिक हो या प्री आपका बीपी इश्यूज शुरू होने वाले हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये है वो है. तो वो जो कट ऑफ है, दैट मीन्स इन केस इफ यू आर ऑन द कट ऑफ, दैट मीन्स यू आर ऑन द मार्जिनल लाइन. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ रेड अलर्ट फॉर ऑल द पर्सन रिलेटेड टू हार्ट डिजीज डायग्नोस. उस केस में भी हम इस तरह से यूज करके उनको रेकमेंड यही करते हैं कि भैया अभी से प्रिकॉशन ले लो, अब आप नाउ यू आर ऑन द रेड लाइन. ओके सर, लेट अस से द कट ऑफ इज ऑन द रेड लाइन एंड व्हाटएवर द वैल्यूज आर. आप इसलिए डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स देखो ना, कोई भी मेडिकल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, उसमें एक रेंज दी होती है और उसके बाद आपकी वैल्यू के ऊपर उस पे जो है वो हायर है लोअर है, एक तो वो हाईलाइटेड होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका क्लियरेंस होता है. तो इन अदर वे देखा जाए जितने भी आज हम ह्यूमन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स निकलती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, तो उसको एक रेड अलर्ट और ग्रीन जोन या रेड जोन में कैसे डालते हैं वो लोग. सो दैट मीन्स दे आर डूइंग अ क्लासिफिकेशन, है ना. सो दे आर, हाउ दे क्लासिफाई,
कि आपकी कोई तो ब्लड आरबीसी कम आया, एचबीसी कम है, HbA1c में गड़बड़ है ना, आपका LDA HDA में गड़बड़ है। तो ये ऐसे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं जो कि आप मेडिकल जब भी आप स्कैन कराते हैं, बॉडी टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर आपको एक वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू का रीजन क्या है ये नहीं पता चल रहा है, बट वो वैल्यू अगर वैसी है तो दैट मीन्स इट्स अ रेड अलर्ट। तो उसमें भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है ना सर। एक्स की जीरो वैल्यू के लिए y 0.5 आएगा ना सर? जीरो वैल्यू के लिए क्या आएगा? y इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। हाँ, e का पावर 0 हो जाएगा ना। हाँ, 0 हो जाएगा ना। एक्स की तो वैल्यू हो गया, x 0 तो ये 1 हो गया, तो 1/2 हो गया, दैट्स राइट। 1/2 0.5 हो गया। हाँ, तो सर नीचे जो ग्राफ बनाया है ना, इसमें x की वैल्यू 0 पे 0.5 आना चाहिए ना सर? कौन सा वाला ग्राफ बनाया है? ये जो आपने बनाया है ना, ये अभी सिग्माइड फंक्शन जो बनाया है, हाँ, इसमें सर 70 पर आया है 0.5 ग्राफ, ये 0 पे आएगा ना सर? x इज इक्वल टू 0 पे, ना कि x इज इक्वल टू 70। नहीं, अरे देखो आपका व्यू पॉइंट कौन सा उसको छोड़ दो। ये एक मैंने सिंपल एक मॉडल बनाया है, ये इसका व्यू पॉइंट मत देखो। व्यू पॉइंट 0 यहाँ 0 होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आप इसको x और y को भी यहाँ से 0 ले रहे हो, क्योंकि 10 मैंने यहाँ लिया तो ये 0 है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे जहाँ 70 है ना, यहाँ 70 है लिखा है आपने x में, 70 लिखा है, वहां पे 0 होगा मेरे ख्याल में सर, शायद। 70 कहाँ लिखा है मैंने? ये नीचे सर x वाले एक्सिस पे देखिए, 120 30 है, 30 है सर, सॉरी। हाँ सॉरी, ये 30 है, की जगह सॉरी अगर हम 0 रखेंगे, लग रहा होगा आपको, दिस इज 30, दिस इज नॉट 70। सॉरी, हाँ 30 की जगह अगर हम 0 रखेंगे तब जाके 0.5 आ जाएगा ना। हाँ, ये जो है ये 30 है, ये ना 1, ये देखो ना 10 20, ये 20 था, ये 10 20 30 40 50, मैंने तो ये लिखा है। हाँ, नहीं सर, वो कह रहा है ना सर कि ये जहाँ 30 है ना सर, वहां से 0 स्टार्ट होगा, 0 10 0.5 हो जाएगा भाई। नहीं ऐसा है, ये ना समझो, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। रुको मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। देखो आपका डेटा कैसा है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। आप कह रहे हो 30 के पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे 0 लैंड कराएं, है ना? तो देखो ये ऑलरेडी 0 ही है, ये सारा यहाँ तक 0 ही तो था। 30 वाली लाइन पे ये सेंट्रल लाइन आ गई ना, आ तो रही है। इसका जो डायग्राम आप देखोगे ये ऐसे ही तो आ रहा है, यानी इसको ना बाइनरी दे समझो। बाइनरी कैसे चलता है, 0 या 1, वो स्क्वायर उसमें चलता है ना, इस फॉर्म में चलता है ना बाइनरी, तो है ना। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका यहाँ पर अगर हम 0 कह रहे हैं तो ये ऑलरेडी सब जगह 0 ही है, ये बाइनरी है, 0 जा रहा है ये सारा इस रेंज में 0 है। लेकिन जो मैं सर y एक्सिस के 0 की बात नहीं कर रहा, मैं x एक्सिस में 0 30 की जगह अगर हम 0 रखें, पूरा स्केल 30 में हम 0 रखें और 0 के लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू हो और 0 के राइट में पॉजिटिव वैल्यू। नहीं ना, नहीं, अगर हमारे नेगेटिव होते हैं माइनस में लेके जाता तो माइनस है नहीं ना, 0 और 1 के बीच में ही तो हमारा है। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज 0 से 1, इसमें -1 से +1 नहीं है। नहीं सर, y जो है 0 1 के बीच में, x तो सर हो सकता है माइनस में। ओके, नहीं एग्रीड, वो हो सकता है, उस केस में ये डायग्राम बदल जाएगा, आई एग्रीड। लेकिन उसके जो भी रिजल्ट, इसलिए तो कह रहा हूँ वो डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड करता है ना। अकॉर्डिंग टू द डेटा पॉइंट्स द थिंग्स में वेरी। लेकिन इस केस में भी अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू 10 आ रहा है, वो कोई भी रीजन है, ये तो एक रैंडम मैंने ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए, सिग्मॉइड फंक्शन बनता है इसका, ठीक है। उसका सिर्फ रीजन ये है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब ईमेल्स को अगर मेरे को वेरीफाई करना है, और अगर ये हो सकता है सर्वर का वो रिप्लाई हो, अगर का सर्वर का, जैसे सर्वर के रिप्लाई आते हैं ना 200 220 250, ये सारे ईमेल सर्वर्स के रिप्लाईज आते हैं हमें 220, तो अलग अलग अगर रिप्लाईज हैं तो इसको एक वैल्यू ना समझो। हो सकता है डेटा टाइप अलग हो, उसका यूनिट अलग हो। और अगर सर्वर का एरर, अगर लेट्स से आप HTTP एरर कोड्स की बात करते हो, अगर हमारा एरर कोड है 200, अरे 200 है तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर वही एरर कोड 400 है या 404 है तो फाइल नॉट फाउंड होता है, वो एक एरर है। 503 है तो 503 तो वो है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग है, वो HTTP एरर कोड्स हैं, है ना। तो यूनिट बदल दी तो, और उसके बाद उसका वैल्यू 0s और 1s में आएगा तो
तो डिपेंड करता है ये ग्राफ किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर 0 है तो हमारा क्लासिफिकेशन ऊपर जो है मोस्टली सिग्मॉइड मॉडल में आएगा। वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं, नाउ यू गॉट माय पॉइंट, वैल्यू इधर उधर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वही है ना, स्केलर वैल्यूज को लेके चले आप, ठीक सर, जो हमने कल स्केलर वैल्यूज को लेके चले थे। इसलिए इसको ना कभी उसमें मत काउंट करो कि हमारा कोई ये इसका सिग्निफिकेंस डेसिमल टू डेसिमल सिग्निफिकेंस आ रहा है। वो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है सर। हाँ, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, बट मैं आपको बड़ा जेनरिक बता रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप लेके चलोगे, दैट आई अंडरस्टूड, लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इसमें जो है ये देखो ना, अब इसमें अगर किसी की वैल्यू हुई है 3.78 तो ये 0 है, ठीक है, और 3.78 के बाद अगर कहीं 5.2 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों है, उसको कैंसर क्यों है? जबकि 3.69 भी कैसे हो गया सर कैंसर, जब 3.78 नहीं है तो? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली यानी इसके अंदर जरूरी नहीं है ये सब कुछ 100% एक्यूरेट वैल्यूज दे, लेकिन यहाँ पर इसको अगर हम कोरिलेट करके देखें, ये एक सैंपल डेटा सेट है, इसको कभी भी कोरिलेट करके मत देखो। ये क्या, डॉक्टर ने बोला, एक डायग्नोस किया, जब ये डायग्नोस करा इसका ट्यूमर का सेंटीमीटर इतना आया, लेकिन वो ट्यूमर का सेंटीमीटर किस रीजंस की वजह से, वो डॉक्टर कह रहे हैं नहीं इसको ट्यूमर नहीं है लेकिन इसको हम ठीक कर देंगे, और जहां 3.69 है उसको कह रहा है वो ट्यूमर है। So that depends on the doctor to doctor and their diagnostic experiences and the way they treat the human or their human bodies and their other impact of the other parameters of the human body impact, उसके बेसिस में हमें पता चला ना। तो ये कोई ये 100% मतलब प्रूफ रीडिंग, और फिर वो ये ना, अगर ऐसा होता तो लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं ना, सब कुछ ठीक होता, तो ये सीक्वेंस में नहीं है ना, ये कंटिन्यूएशन ही है, इसमें तो फिर लीनियर रिग्रेशन लगा देते अगर सब कुछ सही होता तो। नहीं, ये लॉजिस्टिक लग रहा है सर, लॉजिस्टिक। हाँ, ये लॉजिस्टिक ही है। लॉजिस्टिक के प्रोसेस में हमें फिट करना होता है मॉडल को, और हम जब डेटा को फिट करेंगे उसके अंदर दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दैट पैरामीटर मे वेरी। इसलिए मैंने इसको कभी वो नहीं किया कि भाई वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे होगा। मैंने एक सिंपल सिग्मॉइड फंक्शन बनाने की कोशिश की और आपको ये समझाया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रिजल्ट कैसे आएंगे और उसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि मेरी वैल्यूज कहीं ना कहीं ऐसे लैंड करेंगी, या तो वो टुवर्ड्स रेफर टुवर्ड्स 0 और टुवर्ड्स 1 होंगी, और अगर वो टुवर्ड्स 1 है विच इज लेस देन और अबव 0.5 to 1, so that is considered as a, let's say, class A, and this is class A, right, and this is another one is class B in case if the values lie somewhere near to that। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगरिकल देख रहे हैं, और ये हमारा रेंज, हम अब अगर वही बात होगी, अगर 50 में 0 आ गया तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, 40 में 50 में यहाँ पे 0 आ गया, तब क्या करोगे? तो दैट कंसेप्ट वेरीज, क्योंकि ये नहीं पता ये एक्स एक्सिस पे जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, उसका यूनिट क्या है। अकॉर्डिंगली हमें उसके वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले इसलिए मॉडल में फिट करना है, और फिर उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रेडिक्शन नहीं निकालनी, इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, परफेक्ट। सो इन दिस रिगार्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द sklearn। इंपोर्ट करेंगे, मेथड में हमने ऑब्जेक्ट में फिट कर दिया, जब फिट कर दिया तो अब यहाँ पे हम लोग लेट्स से log r प्रेडिक्ट वैल्यू अगर मेथड लगाते हैं, जिसमें आपने सारा अपना एरे दे दिया, उसको रीशेप कर दिया, तो प्रेडिक्टेड एक एरे लिस्ट आ गई, और ऑन दैट बेसिस इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर वैल्यू, कि हमें ये वैल्यू पे आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आ जाएगा। दैट वी वांट टू प्रेडिक्ट that if the tumor is cancerous, where the size of the tumor is let's say 3.46 millimeter। सर ये 3.46 है, अरे नहीं है, खाली एक सिंगल डाटा पॉइंट है, सिंगल वैल्यू जाएगी ना, इसे भी रीशेप करने की जरूरत पड़ जाती है। हाँ ना, क्यों नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बदल जाएंगे ना। और ये जो मेथड है बेसिकली प्रेडिक्ट मेथड है ना, इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो वो तो ये वैल्यू है ना, और इसको जो है उस फॉर्मेट में ही चाहिए जैसा ये एक्सेप्ट
कन्वर्ट करता है। रीशेप मेथड जो है सर कॉलम को रोज में बदलता है, रोज को कॉलम में बदलता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए भी हम वही चीज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स अब अभी सिंगल वैल्यू है, तो इसको भी तो सिंगल वैल्यू ले रहे थे ना, लेकिन इसको रोज टू कॉलम्स में हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है सेम उसी को भी रीशेप कीजिए। और ये प्रेडिक्ट मेथड का एक मॉडल है जिसके अंदर वैल्यू आपको उसी फॉर्मेट में डालनी है, सो दैट यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द आउटपुट। इसमें ना बस ये देखो ना, पाइथन में कभी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसका जो भी फॉर्मेट है, जो भी डेटा फॉर्मेट है, आपको डेटा उसी फॉर्मेट में प्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट ही वही करेगा। तो जैसा डेटा फॉर्मेट है उस हिसाब से आप अपना डेटा जो है मेथड्स में प्लेस कीजिए। आपको मेथड नहीं लिखना है, मेथड के अंदर का मैथमेटिकल एल्गोरिथम कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप रन कर देगा। बस आपको उसके अकॉर्डिंग उसका पैरामीटर एक्यूरेट वैल्यूज में एक्यूरेट फॉर्मेट में डाल देना, और वो अपने आप प्रेडिक्ट करेगा, या जो भी रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं वो आ जाएगा, और वी कैन एबल टू गेट इन एंड विल गेट द रिजल्ट्स, राइट। ऐसे ही आगे कोफिशिएंट्स देख रहे हैं। सो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द कोफिशिएंट इज द एक्सपेक्टेड चेंज इन द लॉग ऑड्स of having the outcome per unit change in x. So this does not have the most intuitive understanding, so let us use to create the something that makes more sense and odds. तो थोड़ा सा इसमें और वैल्यूज को हमने रीशेप किया, वैल्यूज को चेंज किया। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये हमने क्या यूज़ किया था मेथड, ये वैल्यू डाल रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, सेम ही है ये तो। वी हैव सम सेम वैल्यूज एंड सम प्रेडिक्टेड वैल्यूज। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेथड का मॉडल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट। इसमें रीशेप मेथड नहीं यूज हुआ ना? हाँ, वो चीज़ नहीं डाली, और इसमें सिर्फ कोफिशिएंट वैल्यू निकाली है। तो इसका जो भी एक्चुअल कोफिशिएंट वैल्यू आ गई वो निकाला है। तो इसमें सिर्फ कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई किया है। द एक्सपेक्टेड चेंज इन द लॉग ऑड्स ऑफ हैविंग द आउटकम पर यूनिट चेंज इन द एक्स। तो पर यूनिट चेंज जो होगा उसका कोफिशिएंट वैल्यू का क्या होगा, उसके लिए उसको रीशेप नहीं किया। डेटा को तो रीशेप पहले कर दिया जो एक्स में डालना था, बट आफ्टरवर्ड्स हमें जो लॉग कोफिशिएंट मेथड लगाया इन्होंने, उसकी जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि लॉग में ऑलरेडी आप अपना डेटा सेट फिट कर चुके हो, तो जब फिट कर चुके हो तो सिंपली उसका कोफिशिएंट वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो वो एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल में डाला और उसको प्रिंट करा दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको प्रिंट करा दिया। तो एक्सप्रेस कर दिया इसको और प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में से कोफिशिएंट वैल्यू कैसे निकालना है, ये उससे रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू कोफिशिएंट, not prediction, right? It's not predicted, it is predefined based on the data set. We are trying to identify the coefficient value, that's it. सर एक मिनट सर बताएंगे सर कोफिशिएंट का क्या, हम कैसे? देखो कोफिशिएंट ना हम वर्ड बड़ा अलग अलग जगह पे भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम रिलेशनशिप का कोफिशिएंट वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप इन द रिग्रेशन, ठीक है। मतलब एक तरह का ये समझ लो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जैसे एक कट ऑफ वैल्यू या एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। आपने कभी स्टैंडर्ड डिवीजन किया है, सॉल्व किया होगा? हाँ सर। जैसे सर फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिफरेंट एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हम ना कोफिशिएंट वर्ड को जो अलग अलग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो अलग अलग हम स्पेशली रिग्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो एक कोफिशिएंट वैल्यू है कि अगर इस रेंज तक का गैप है, एक स्टैंडर्ड एक ना थिन लाइन, एक कट ऑफ लाइन टाइप हम ले लेते हैं, एक पॉइंट मिल जाता है, और फिर हम मैथमेटिकली उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, इज इट विद इन द कोफिशिएंट और आउट ऑफ द कोफिशिएंट, और अलोंग विद दैट कोफिशिएंट व्हाट आर द रिजल्ट्स, ठीक है। तो इससे ना इसका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और कोफिशिएंट का भी एक लेयर रखते हैं। लेट्स से आपने इसी को भी आगे उसमें वो स्क्वायर करा था, आर स्क्वायर निकाला था पहले वाले में जैसे, है ना, और आपने एक कोफिशिएंट निकाला था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी निकाला था, जब स्लोप और वो सारे वेरिएबल्स आपने, इंटरसेप्शन पॉइंट, आर वैल्यू, ये सब आपने पहले भी निकाले हैं।
तो बेसिकली ये सब क्या है, दीज ऑल आर द डिफरेंट कोएफिशिएंट वैल्यूज जिसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग वैल्यूज या यूनिट्स को हमारा इफेक्ट पता चल जाता है कि कितने गैप पर है। अगर वो गैप ज्यादा है या कम है तो हम ना उसको एक कंपैरेटिव फॉर्म में ले जा सकते हैं। दिस इज अ पर्पस। तो इसलिए हमें कोएफिशिएंट वैल्यू निकालना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट। जिसका जैसा कोएफिशिएंट आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर उससे ऊपर है या उससे नीचे है, भाई मतलब वो कहते हैं ना, जैसे अगर एग्जाम्पल आजकल वो आते हैं, अगर आपने 10 घंटे पढ़ाई करी तो आप पेपर पास कर लोगे डेली। अगर आप 10 घंटे कर लोगे तो आईएएस पास कर लोगे। ये कोई रूल थोड़ी है, ये कहीं लिखा थोड़ी है कि आपको रोज 10 घंटे पढ़ना है तभी आप आईएएस का पेपर पास करोगे या आप पीएचडी क्लियर कर लोगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसका हमें कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, यानी पर आर आपका पर डे कितना एक आर लेवल हो जाए जिसको मल्टीप्लाई करें 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में। तो इसलिए आर स्क्वायर जैसे हमने उसमें किया था, तो उससे ना उसकी क्लैरिटी और ज्यादा आ जाती है कि आप एक उस रेंज में, उस क्लासिफाइड एरिया में बिलोंग कर भी रहे हैं या नहीं। बच्चे की अटेंडेंस क्यों हम बोलते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में 70% अटेंडेंस है आपकी कॉलेज में, तब आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं बैठने दिया जाएगा। So what is that? These are the coefficient values which gives you the idea about the time or effort being placed by the student in any particular area, that whether they really attended the classes or not. तो अगर उसने क्लास ही अटेंड नहीं करी है तो उसे पता ही नहीं ना सब्जेक्ट में हुआ क्या है, तो वो पास कैसे होगा? तो उसको बैठने ही मत दो एग्जाम में, क्योंकि वो फेल हो जाएगा। वो फेल हो जाएगा तो फिर उसमें से प्रोफेसर्स का, कॉलेज का रिजल्ट कम हो जाएगा, है ना। क्यों प्री बोर्ड लेते हैं स्कूल्स में? तो मतलब इट्स लाइक यूज फॉर अ कोएफिशिएंट लेयर। एक ना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम कई बार कोएफिशिएंट वैल्यूज का यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है आपका डेटा, आपके एल्गोरिथम्स, आपके पैरामीटर्स पे, आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे इन द रियल टाइम एग्जांपल्स, रियल टाइम प्रैक्टिकल्स, राइट। और ये डेटा से ही मिलेगा। मतलब जब आप एक्स और वाई डेटा को कोरिलेट करेंगे तो इसका जो रिलेशनल मॉडल निकलेगा उसी से ही। और उसमें आपने कौन सा मॉडल यूज किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन करा है तो कंसेप्ट अलग है, लीनियर रिग्रेशन है अलग है, पॉलिनोमियल है अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आर वैल्यू निकलेगी या जो रिलेशनल वैल्यू या कोएफिशिएंट वैल्यू निकलेगी, ये डिपेंड करता है मेथड टू मेथड। इस ऑब्जेक्ट में मेथड निकालने का तरीका यह है, जब आपने डेटा फिट कर दिया तो फाइनली टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, वो हम निकाल के यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं, एंड फाइनली वी आर ट्राइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट कम्स बेस्ड ऑन द डेटा सेट। सो this tells us that the size of the tumor increases by 1 mm, the odd of it being a cancerous tumor increase by 4x। अगर वो मतलब एक periodical पार्ट में 1 mm की तरह बढ़ रहा है, ठीक है, स्लो एंड ग्रेजुअली, अगर मतलब it increases by 1 mm, so that could be curable। और अगर वो सीधा 4x फॉर्म में बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, सो दैट कुड बी अ कैंसरस। सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू ट्रीट, rather than making the accountability that the value and correlations and all। तो अकाउंटेबिलिटी का देखो रिजल्ट्स इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट करा है कि आपका एज पर व्हाटएवर, है ना, ये आपका एक जो रीशेप हो रहा है तो उसकी जो वैल्यूज आई हैं वो कैंसरस है या नहीं, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका कितना फ्रीक्वेंसी में ये इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ये है कि अगर वो 1 mm के अकॉर्डिंग चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैंसरस नहीं है, वो ट्यूमर जो है कैंसरस नहीं है। लेकिन अगर वो 4x की स्पीड से 4, क्योंकि हमारा जो है कोएफिशिएंट वैल्यू निकला, तो अगर वो 4x के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सर ये इसका मतलब ये हुआ, अगर 3 mm जो वो है ना साइज ऑफ ट्यूमर है, और उससे अगर 1 mm और बढ़ता है ना, तो 4 टाइम चांस बढ़ जाते हैं, 4 टाइम के वो कैंसर। एग्जैक्टली आप ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू और डेटा सेट ऐसी तरह से है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये जितना बढ़ेगा उसके 4 टाइम चांसेस बढ़ते जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे।
क्यों बार बार बोलते हैं कि इसको जो है बेटर ये नहीं है कि आप प्रिडिक्ट करके आप प्रिडिक्शन करें, प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी हमेशा जरूरी नहीं है सही आए, उसका कुछ ना कुछ वेटेज होगा. So it is always recommended to go in the concepts of probability rather than going to the your predictions. समझ में आया मेन डिफरेंस क्या है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में? Yes, sir. Right? Yes, sir. So let's say now let us find the coefficient and the intercept value can be used to find the probability that each tumor is cancerous or not. So we want now the relation between the coefficient and the intercept value that can use to predict, or basically not predict, the probability. So we can able to find the probability on the basis that whether the tumor is cancerous or not. So create a function that is used for the model coefficient and interception value to return the new values. तो उसके according ये identify करेगा. So this value, new value represents the probability that the given observations in the tumor. तो वो कैसे निकालेंगे? एक मेथड बना दिया लॉजिक टू प्रॉब. ठीक है, इसमें आपने लॉग आर अपना सारा डेटा सेट डाल दिया एक्स एंड वाई वाला, जो ऑब्जेक्ट है फिटेड वैल्यू ऑब्जेक्ट है, मेथड पूरा आपका जो मॉडल है. सो विल कंसिडर दैट एंटायर मॉडल ऑन एक्स एक्सेस, देन कॉमा टू जहाँ वाई लिखते थे वहां पे हमने एक्स एक्सेस को डाला है. सो इट इज ऑल विद द एक्स एंड को रिलेशन विद द एक्स एंड वाई विद एक्स. सो दिस इज द मेथड. तो हमने ये दो पैरामीटर्स पास करें अभी एक मेथड में. सो दिस इज जस्ट अ मेथड वेयर यू आर पासिंग टू पैरामीटर, वन इज लॉग आर एंड सेकेंड इज एक्स. अब अंदर क्या यूज करेंगे वो देखते हैं. सो log r dot coefficient value multiply by x plus log r dot interception value. तो ये वही आ गया ना रिलेशनशिप वाली बात जिसमें हमने उसमें भी देखा था. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका coefficient value multiply by x plus interception values को अगर आप लोगे सो वो आपने log odds बना दिए, और उसको जो है probability को आइडेंटिफाई करने के लिए तो जो भी वैल्यू ऑफ odds निकले तो odds डिवाइड बाय 1 प्लस odd. ये वही आगे मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था. दिस इज लाइक 1 अपॉन 1 प्लस odds. व्हाट आर odds? सो इट्स अ एक्सपोनेंशियल ऑफ द वैल्यू ऑफ -6, राइट? इस तरीके से ये प्रेजेंट करता है. और सर ये इक्वेशन y mx c वाली फॉर्म में आ गई जो log एग्जैक्टली mc करते थे ना, जी, उसको अगर आप y mx यहाँ पे log r कोएफिशिएंट जो है वो स्लोप हो गया लाइन का, और log r इंटरसेप्ट जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया या c हो गया. करेक्ट ये वही है एग्जैक्टली है ना. तो जिससे आप प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी के मेथड्स ही है ना इंटरनली. तो यहाँ पे आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. जैसे मैंने आपको क्या बताया था 1/6 है ना. 6 आने की डायस में प्रोबेबिलिटी क्या 1/6 है ना. सो इसी तरीके से यहाँ हमने y जो कैलकुलेट किया है, लेकिन हमारा डेटा सेट ज्यादा है तो हमने पहले log r यानी एक मॉडल डिजाइन किया है. तो मॉडल में क्या है हमारा x और y की का कांस्टेंट वैल्यूज तो ये हम ऑलरेडी फिट कर चुके हैं है ना. log r जो है वो ऑलरेडी हमारा फिट है. तो इस मेथड का पर्पस ये है प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आप पहले log r का पूरा मॉडल पास कीजिए एज अ पैरामीटर, और पूरी x की सीरीज पास कीजिए, और फिर पहले log odds को आइडेंटिफाई करें. दैट मींस द log r मल्टीप्लाई बाय x प्लस द इंटरसेप्शन वैल्यू. सो ऑन दैट बेसिस यू विल फाइंड द log odds, एंड जो भी log odds निकलेंगे उसका numpy डॉट मेथड है exp, उसमें log odds वैल्यूज डाल दीजिए जिससे आपको odd वैल्यूज मिल जाएंगे, और odd वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी में प्लेस कर. सो y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. So this is what the explanation given below, that you are trying to convert and you are trying to create the exponential value of the log odds. ये log odds. तो variable कुछ भी हो सकता है, but this is the way how they are trying to treat and to calculate the method of this logistic regression and trying to identify the values of coefficient and interception, and on that basis we are trying to identify the value of y, which is probability. और ये रहा पूरा मेथड. जब आप इसमें रन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे रिजल्ट्स मिल जाएंगे हर एक की प्रोबेबिलिटी के, जो भी लॉग आर प्रोबेबिलिटीज हैं. तो 0.6, 0.19
आप देख पा रहे हैं जो 0.5 से कम होगा इसमें वो नहीं होगा कैंसरस, और जो 0.5 से ऊपर होगा वो होगा। हाँ ये रहा ना, जैसे ये 0.57 आ गया है ना, सेम वे में। तो ये सब कैंसरस ऊपर अब जाना, ये कैंसरस हो गया, ये नहीं होगा। सो अब आपको ना उसकी वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी, और इसकी वैल्यूज की कैंसरस होने के चांसेस क्या हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू आई 0.601, मतलब 61% चांस है, जिसका वैल्यू 3.78 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्यूमर विद द साइज ऑफ 3.78 सेंटीमीटर इज कैंसरस इज अप टू 61%। तो परसेंटेज में इन्होंने निकाल दिया कि ये जो वैल्यू आई 0.60, जिसे हम 0.61 मान रहे हैं, विच इज नथिंग बट 61% chances, the probability that this value, this person may be this it's a tumorable, right, with a size of 3.78 size, and they're cancerous up to 61%. 2.44 है जिसका साइज, वो अभी 19% है। तो अब ये ना प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स इस तरीके से आ गए। इसके चांसेस क्या है, कितने परसेंट चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है ये इस रेंज में फॉल करेंगे। तो ऑन दीज ग्राउंड्स इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। लॉजिक क्लियर हुआ जी? यस सर, क्लियर। राइट। इसलिए इसे कई बार बाइनरी क्लासिफिकेशन सिनेरियो भी बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन सिनेरियो, क्योंकि फाइनली हर चीज को हम जीरोस एंड वंस में प्रोबेबिलिटी बेस पे कनेक्ट करके इसको एक्सेस करते हैं। सो इट मैप द रियल वैल्यूज इन द इंटरवल ऑफ जीरोस एंड वंस। डेटा पॉइंट्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लास ए क्लास बी में कर दिया। तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ 0 मीन्स नो पॉसिबिलिटी, 1 मीन्स हायर पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। और in case any point which is placed near to the cutoff line, so then it is considered as an unclassified value। जिसे आप एरर वाली बात कर रहे थे, हम उसे कहते हैं अनक्लासिफाइड है। Where जनरली ऐसा बहुत रेयर केस आता है, हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि आपके वैल्यूज को जब आप इसमें डालोगे तो आपको बड़ा क्लियर परसेंटेज क्लियर आ जाएगा। अब आप मतलब आप कहोगे भैया वो तुम बीमार हो, और आप कहते हो जो भी बीमार है उसे आप कहते हो तू 50% बीमार है। अरे 50% सही है, बीमार है वो, मतलब यू आर नॉट क्लियरिंग, इट्स अनक्लासिफाइड सिचुएशन, है ना। दिस इज अनक्लासिफाइड सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा डेटा नहीं आता, ऐसा भी कई बार आता है, बट उसके चांसेस रेयर होते हैं। बट sometimes even it is possible that you will find such data. So in the selected जो भी आपका डेटा सेट होगा, उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज फिल करें। ब्लैंक वैल्यूज नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। सो नॉर्मलाइज डेटा लेके चलना है आपको। योर डेटा मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अगर डेटा नॉर्मलाइज होगा, ब्लैंक नहीं होगा, अब चाहे 0 है तो 0 लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, खाली नहीं छोड़ना है। You need to mention all the values, all the missing values need to be placed in correct format to be corrected properly, ठीक है। ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना है before you apply your data and place that data into a model। जब आप फिट मेथड चलाते हो, फिट मेथड चलाने से पहले आपका डेटा 100% प्रोसेस तब ठीक से करेगा, रिजल्ट अच्छे से तब देगा जब डेटा बिल्कुल सेट करेक्ट फॉर्मेट में पड़ा। उसका जो भी कोफिशिएंट आएगा, इंटरसेप्शन आएगा, उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली हम लोग जो है एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे हम उसको एक परसेंटेज बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया जी? यस सर। सो इसके बाद आप एक बार ये और देख लें, डिसीजन ट्री ज़रूर देख लें। और एक के मीन एल्गोरिथम है आपका, इसमें के नियरेस्ट KNN, के मीन, ये सारी एल्गोरिथम ज़रूर देख लें। इससे रिलेटेड बहुत सारे कई बार पेपर में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है।
व्हाट इज KNN, व्हाट इज K मीन, व्हाट इज कैटेगरिकल डेटा, है ना। और मतलब ये बेसिक वैल्यूज हैं जिसको आप एक बार प्रोसेस कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बेटर है आप इससे स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सो आई रिकमेंड स्टार्ट विद हमने ट्रेन टेस्ट कर ही लिया था, डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, देन क्लस्टरिंग बाद में जाना, अभी नहीं, क्लस्टरिंग बाद में लेंगे, पहले क्लासिफिकेशन सारे ले लो, राइट। तो वो क्लासिफिकेशंस ले लो, फिर क्लस्टरिंग की बात करें। क्लासिफिकेशन में आपका सारा का सारा डेटा जो है लेबल डेटा है। ठीक है जी, तो कीजिए, प्रोसेस कीजिए, देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट, हाउ वी कैन गेट इनटू डिसीजन ट्री। तो इस तरह का कुछ डिसीजन ट्री बनता है ना। रैंक इज लेस देन इक्वल्स टू 6.5, so Guinea is this value, then samples equals to इतना, value 6,7। तो रिजल्ट अगर ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो क्या स्टेटस है, फॉल्स है तो क्या स्टेटस है, ये इस तरह से है। इसको एक बार आप एग्जाम्पल देखें और नीचे वैल्यूज देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग है। सो इन दिस चैप्टर व्हाट इज डिसीजन ट्री, in this chapter we will show you how to make the decision tree, a tree which is again the flow chart sort of can help you to make a decision based on the previous experiences। तो जब भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, उसके अंदर कितने इफ एंड बट्स हैं, कितने क्वेरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा। अभी आजकल एक वो आ गया, एआई के चैट बॉट्स बनते हैं, चैट बॉट्स में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे में हम कई बार डिसीजन ट्री का ट्राई करते हैं कि भाई इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में, इसके बाद ये भी सिनेरियो, उसके बाद ये भी सिनेरियो, मल्टीपल सिनेरियो बेस्ड इश्यूज के बाद विच outcome is the best and appropriate to process so that we can able to take the decision, right? तो that depends on the parameters and the values। इसी बेसिस पे आप डिसीजन कैसे लेते हो, आपका माइंड कैसे डिसीजन लेता है। So it is all based on the previous experiences, but आप एक बार एक constant value तो नहीं लेते ना हमेशा। You never always travel from your car। अगर आपको लगता है that you have to reach earlier and you have less time in Delhi, although you can go with the car but you will reach late। So instead of driving a car, you might take a decision, let us go by metro, let us use some public vehicle, let's say we'll go with metro because there is no delay, although your comfort may get compromised, but you take a decision that you go by metro so that you can reach on time। So what is your priority, your comfort is your priority or time is your priority। So इस तरह से हम लोग कई बार डिसीजंस ले लेते हैं, है ना। तो ये डिसीजन कैसे, और सबसे ज़्यादा डिसीजन कब लिया, किस फॉर्मेट में लिया, किस चैलेंजेस में लिया। सो हर चीज़ सही है, हर चीज़ गलत है। मतलब क्रिकेटर्स के हिसाब से सोचिए, हर बार उन्हें छक्का मारना है, हर बॉल पे ही छक्का मारना है, नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। बट अगर वो मार ही देंगे तो अलग ही उनका रिकॉर्ड्स बनेंगे। So what is the concept altogether? The concept is, what is the scenario, what are the number of conditions and nested conditions, and based on multiple scenarios and or gates, it's a combination of and or gates in the hierarchical format, right, in the tree structure sort of. Based on that we can able to decide the best practice and best results on that basis। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट्स निकल सकते हैं, आप कोरिलेट करके दिखा सकते हैं। सो व्हाट इज दिस, हाउ टू मेक अ डिसीजन ट्री, फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ। सो अ पर्सन विल ट्राई टू डिसाइड इफ ही शी शुड गो टू द कॉमेडी शो और नॉट। तो ये नीचे एक वो दिया है लिस्ट कि कोई कॉमेडी शो देखना चाहते हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लकीली आवर एग्जाम्पल persons has registered every time
देयर वाज अ कॉमेडी शो इन द टाउन। तो जब जब कॉमेडी शो होता है, इन्होंने रजिस्टर तो किया है, रजिस्टर किया मतलब दे आर इंटरेस्टेड एंड दैट्स व्हाट दे हैव रजिस्टर्ड, and registered some information about the comedians, right, and also registered if he she went or not, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ 5 पैरामीटर्स, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, एज, एक्सपीरियंस, रैंक, नेशनैलिटी एंड वेदर दे रियली गो और नॉट। तो 36 ईयर का पर्सन जिसका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स है, उसका एक रैंक लेवल 9 है, and the person is UK citizen, on that basis they will not go to attend any comedy show, ठीक है। तो this way although they registered still they are not going। so इस तरीके से आपको कुछ अलग अलग कंट्रीज का और अलग अलग डेटा सेट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेगा। now based on this data set, Python can create a decision tree that can be used to decide if any new show are worth attending to। accordingly उसका डिसीजन ट्री क्या बनेगा। तो क्या आप अपनी कंपनी के लिए, अपने घर के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग मॉडल के लिए कुछ आप ऐसा बना के रखते हो, है ना। सो ऑन दैट बेसिस हाउ यू विल डिसाइड एंड हाउ यू विल गेट इनटू द डिसीजन ट्री। तो ऐसा कुछ डिसीजन ट्री बन सकता है क्या, जहां मल्टीपल कंडीशंस और वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रू या फॉल्स करोगे, लेफ्ट या राइट जाओगे और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, राइट। इस तरीके से मल्टी एट्रीब्यूट्स पे कंडीशनल यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे कंडीशंस हैं, उनके कुछ पैटर्न्स हैं, और ऑन दैट मल्टीपल पैटर्न्स multiple action were triggered by various different within the values it lies in the data set। so how it works, let's see। you first read that file, data file, using pandas, और now try to map their values। तो इसमें डिक्शनरी टाइप हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी कैसे बना रहे हैं, इसके अंदर आपकी वैल्यूज जो बना रहे हैं वो क्या है, आपका यूके है तो 0 है, यूएस है तो 1 है, न्यूजीलैंड है तो लेट्स से 2 है। तो हमने इसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि लाइक कभी भी हमारा, क्योंकि डेटा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना, है ना, स्केलिंग करने के लिए। अब यूके इंग्लिश की वैल्यूज को न्यूमेरिक के साथ कैसे कोरिलेट करोगे। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी इंग्लिश वर्ड्स वी आर गिविंग सम नंबरिंग एंड बेस्ड ऑन दोज नंबरिंग फर्दर विल टेक सर्टेन एक्शंस। इस तरीके से आप डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो। मस्ट लर्न व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब जब यूके बोलेंगे तो उसकी वैल्यू को हम लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं 0 मान लेंगे, एंड यू कैन डिफाइन एनी नंबर और एनी स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग से निकल के तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहे हैं। so we try to convert every data in your excel sheets into a numerical format। आप 5 स्टार रेटिंग लेते हो, 1 2 3 4 5 नंबर रिजल्ट जो एक्सेल में आए वो नंबर 1 2 3 4 में आए, और यूजर इंटरफेस में तो एक ग्राफिकल आइकन 5 बड़े स्टार्स बने हो, वो जितने 5 स्टार्स पे क्लिक करता है तो अपने आप न्यूमेरिकल 5 की वैल्यू जो है ट्रांसफर हो जाए। सो दैट व्हाट वी कैन मैनेज, it's in the code, in the programming model, logic building model। but technically in analytics, in case if you find the data with the string, so first try to create another transform data set where you convert your strings to numerical, right। इस तरीके से आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, नेशनैलिटी में मैप डिफाइन कर दिया, अलग अलग कैटेगरी वाइज नेशनैलिटी का मैपिंग कर दिया, जो कि डी ऑब्जेक्ट में था। तो डी क्या है, डिक्शनरी थी एक, राइट। तो इस डिक्शनरी को मैप कर दिया आपने डीएफ का नेशनैलिटी में, राइट। और एक है गो मेथड एंड ऑल, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द डीएफ। तो जब गो करेंगे तो देन विल हैव अ 2 सेपरेट द फीचर कॉलम्स फ्रॉम द टारगेट कॉलम्स। द फीचर्ड कॉलम्स आर द कॉलम्स दैट आर we are going to predict the from method, and the target column from where the value we try to predict, कौन से वैल्यू में से डेटा को प्रेडिक्ट करवाना है। और सेकेंड
वो वैल्यू जो उसको हम पास कर रहे हैं उसके बेसिस पे टारगेट को अप्रोच करें। सो वही ऑलवेज 2 वैल्यूज डालते हैं। तो हमें फीचर्स क्या चाहिए, एज, एक्सपीरियंस, रैंक, नेशनैलिटी। तो फीचर्स आपने सारे का सारा एक्सट्रैक्ट करके एक्स में डाल दिया और डेटा को वाई में डाल दिया, एक्स और वाई को प्रिंट करा दिया। In the next part, now we are trying to create the actual decision tree, fit it with our details and start by importing the modules we need. तो पहले अपना एक मॉडल बनाएं, उसको फिट करें, मशीन लर्निंग में डिप्लॉय करें, उसके बाद जो कंडीशनल मेंटेनेंस, जो नई वैल्यूज ऐड होती जाएंगी, धीरे धीरे वो अपने आप ट्रेंड होता जाएगा। So importing the modules as we need. So in this case, you find many logical operations, but that is again mapped with certain activities. तो ये देखो यहाँ क्या है, जैसे pandas है, sklearn तो हम यूज कर ही रहे हैं, matplotlib करते हैं. So now you are going to read the data which is called as D. So df and D is another dictionary where you define some numerical part. तो आपने यहाँ पे df में जहां जहां नेशनैलिटी थी उसको मैप कर दिया डी वैल्यू से, मैपिंग कर दी डी वैल्यू से। तो जहां पे लिखा था यूके वो बन जाएगा 0, जहां लिखा था यूएसए वो 1 बन जाएगा, और जहां लिखा था एन वो वैल्यू बन जाएगी 2। तो दिस इज द वे हाउ यू ट्रांसफॉर्म। अगेन यू डिक्लेयर वन मोर डिक्शनरी विद द येस को 1 कर दिया, नो को 0 कर दिया, और गो वाले डेटा सेट में जो है आपने उसको मैपिंग कर दी विद द वैल्यू ऑफ डी। नेक्स्ट आपने एक फीचर्स लिया, फीचर्स इज इक्वल्स टू आपने हेडिंग्स डिफाइन कर दी, फीचर्स को आपने एक्स फॉर्म में रखा और गो के डेटा सेट को वाई में रखा, डिसीजन ट्री क्लासिफायर मेथड लगाया जिसका नाम आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया डी ट्री, और डी ट्री में फिट कर दिया, फिर से मॉडल तैयार कर दिया और एक्स और वाई की वैल्यूज को फिट कर दिया। तो जैसे ही इसको फिट किया, फिट करते ही एक ऑब्जेक्ट का रिटर्न, और उस रिटर्न ऑब्जेक्ट को tree.plot.tree मेथड में डिप्लॉय कर दिया विद द फीचर नेम जो हेडिंग ऊपर होगी, और उसके बाद उसका डेटा रहेगा। समझ में आ गया जी सबको? तो लगभग कुछ ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स लिए हैं, क्यों लिए हैं, ये जो भी एक स्मॉल एग्जांपल था, और इस एग्जांपल में इसने क्या क्या वेरिएबल्स लिए हैं वो सारा नीचे डिफाइंड है। एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। क्लियर है जी? Further you can go with the predicted values as well. Right? ये कर लीजिए। इसके बाद आप एक बार के मीन और के एन एन और एक एस वी एम, आगे एस वी एम भी करना है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स को एक बार अच्छे से कर लें। राइट? कोई डाउट है? नो सर। Please try to practice these algorithms in R language as well. R language नहीं छोड़ना, Python तो ठीक है, 2 to 9 में आपको R language का सिंटेक्स भी पता होना चाहिए। तो मॉडल सेम है, लेकिन उसमें पाइथन कोड और R लैंग्वेज का कोड दोनों एग्जीक्यूट करना है आपको।
प्रैक्टिस शुरू कीजिए जी फटाफट। कोई डाउट आता है तो पूछिए। सर which one we have to practice start? प्रैक्टिस करना है आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, उसके बाद के मीन्स, के एन एन, और एक और सर्च करेंगे एसवीएम। Sir, what is GINI in it? GINI ये एक पैरामीटर रखा हुआ है इन्होंने कुछ। एक मिनट, ये डाटा CSV में भी नहीं दिख रहा है और सैंपल वैल्यू थोड़ा सा समझने में। ये देखिए एक वैल्यू है वेरिएबल रैंक विच मीन्स दैट एवरी कॉमेडियन विद द रैंक ऑफ 6.5 और लोअर will follow the true arrow which is to the left side, and the rest will follow the false goes to the right side. Gini value is 0.497, refers to the quality of the split quality है ये, वही एक coefficient की तरह है, and is always the number between 0.05 से 0.5 तक के बीच में, where 0.0 means all the samples got the same result, and 0.5 would means that the split is done exactly in the middle. वही 0.5 का जो कट ऑफ लाइन ही निकाली थी उसे गिनी वर्ड दिया इन्होंने, राइट, कि इसका जो मिडल एग्जैक्ट वैसा है. सो सैम्पल इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स देर आर 13 कॉमेडियंस left at the point of in the decision, which is all of them, since this is the first step, and value जिसको हमने वो करना है, so means that of these 13 comedians 6 will go get a no answer and 7 will get the go answer, right. तो ये इस तरह के से है. और गिनी की वैल्यू कैसे आई थी? there are many ways to split the samples. तो जो सैम्पल स्प्लिट कर रहे हैं, वी यूज द गिनी मेथड इन द ट्यूटोरियल. सो गिनी मेथड इज यूज्ड इन द फॉर्मूला वेयर गिनी इज इक्वल्स टू 1 minus x upon n square minus y upon n square, where x is the number of the positive answers, n is the number of the samples, and y is the number of the negative answers. तो उसके बेसिस पे जो कैलकुलेट करा तो गिनी की वैल्यू निकली 0.497. तो जिसका गिनी का वैल्यू निकली, जिसका 0.497 है, यानी गिनी की वैल्यू या तो 0 और या फिर 0.5 के आसपास रहेगी. 0.5 है, ये स्प्लिटेड है. स्प्लिट मतलब या आधा ट्रू जाएगा या फॉल्स जाएगा. लेकिन अगर गिनी की वैल्यू 0 आ गई मतलब 100% ट्रू है, इसके आगे नीचे कहीं स्प्लिट नहीं होगा, इसका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यानी सैम्पल इक्वल्स टू 5 है, तो वैल्यू को आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर देंगे, राइट. अब अगर नेशनैलिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 0.5 आया तो उसकी गिनी की वैल्यू कितनी आ रही है और उसके अकॉर्डिंग सैम्पल क्या है और उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू स्प्लिट कैसे हुई है. तो दिस इज द वे हाउ इट इज वर्किंग. इसका मतलब सर गिनी अगर 0.5 के नियरेस्ट है तो हाफ हाफ स्प्लिट होगा. हाँ, तब स्प्लिट होगा, राइट. स्प्लिट तो होगा सर, लेकिन इक्वल स्प्लिट होगा. जैसे अगर 13 स्प्लिट होगा है तो 6 और 7 में स्प्लिट हो जाएगा. अगर 14 है तो 7 में स्प्लिट हो जाएगा. हाँ, करेक्ट करेक्ट. और अगर गिनी की वैल्यू जो है 0 के नजदीक है, 5 से 0.5 से दूर है, तो सर अनइक्वल डिवीजन होगा. जैसे वैल्यू 1,7 दिख रही है. हाँ, तो इसमें भी देखो ना, जैसे 5 ही आया सैंपल तो सीधा 5,0 कर दिया. जिसमें सर गिनी 0 है तो उसमें फिर जो है फिर बिल्कुल स्प्लिट नहीं होगा. हाँ, ट्रू है, मतलब ये ऑल द कंडीशंस आर सेम. जितना मर्जी आप उस पे एक्सपेरिमेंट कर ले, गिनी 0.2 है तो अनइक्वल डिवीजन होगा, पर होगा डिवीजन. हाँ, ऐसे ही कुछ है सर. तो इसी तरीके से इसको प्रोसेस कर रहे हैं.
वही कह रहे हैं, एक बार पूरा इसे गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है जी, कोई डाउट है किसी को? होप थिंग्स गोइंग गुड।
So hope you are doing fine. अपना ये discussion यस सर। है ना? Great. आगे एक SVM लेना, इसी पे ही नेक्स्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन, वो ना W3 स्कूल्स में नहीं है तो उसे गीक फॉर गीक से ले लेना। गीक्स फॉर गीक्स में भी अच्छे से समझाया हुआ है सर। बहुत अच्छा है, गीक फॉर गीक इज वेरी गुड with good explanation, with mathematical representation and with the code. लेकिन सर उतना लिखते हैं ना सर एग्जाम में, गीक्स ऑफ गीक्स में जितना समझाया है, फिर भी मार्क्स जो है ना वो काट ही लेते हैं सर। अब ये तो खैर एग्जाम्पल जो आपके वो है एग्जामिनर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ना? ज्यादा मार्क्स दे देंगे सर, शक हो जाएगा उन्हें कि इग्नू वाले फ्री में नंबर बांट रहे हैं, इसलिए बहुत टाइट मार्क्स। चलिए, that's fine. So all right, thank you so much. Let's wind up for today then. थैंक यू सर। Of any further queries, so you may connect and then see you next week. हमारे भी हैं और सेशंस, so we'll connect and we'll continue. अब सिर्फ आप ही के हैं सर, 4-5 सेशन हैं, सारे आप ही के हैं सर। अच्छा, सब हो गए बाकी? हाँ सर, बाकी खत्म है। That's good. Thank you so much. Thank you, sir. Wish you best of Okay. luck. Take care. Thank you all. Take care. See you then. Bye bye. सर।